خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تیز رفتاری، کنٹرول اور حاضر دماغی ڈی ایچ اے سٹی میں ہب ریلی آٹو کراس کا انعقاد۔ خواتین نے بھی بھرپور مہارت دکھائی۔ رنگا رنگ ایونٹ میں 65 ڈرائیورز نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی گورنر سندھ نے بھی موٹر سپورٹس کار میں سفر کیا۔ آرگنائزر شجاعت شیروانی نے کہا کہ موٹر سپورٹس کے فروغ کے لیے آٹو کراس ایک بہترین اقدام ہے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ پکا ٹریک اور اس پر لہراتی گاڑیاں، تیز رفتاری اور کنٹرول۔ 1.7 کلومیٹر کے اس ٹریک کو کونز لگا کر ڈرائیور کے لیے اور مشکل کیا گیا۔ کچھ ٹھہرے، کچھ نے تیزی دکھائی اور کوئی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لایا۔ ڈرائیورز نے اپنے فن کی تماشائیوں سے خوب داد سمیٹی۔ چیلنجنگ گاڑیوں کا بہت فرق پڑتا ہے، سیکنڈز کا، بٹ میکس اے ڈفرینس ایز ویل۔ گریٹ ٹائمنگ، ویری ایکسائٹنگ ماشاءاللہ، اور بہت خوشی ہوئی کہ کراچی میں ایسے بھی ایونٹس ہو رہی ہیں۔ ادھر ہم گاڑی کی پریپریشن کرتے ہیں، پہلے ٹائرز، بریک، سسپینشن سب چیک کرتے ہیں۔ ادھر سیفٹی چیکس ہوں گی، ٹریک واک کرنا پڑتا ہے سر، دیکھنا ہے، پلان کرنا پڑتا ہے، پھر رن بھگانا پڑتا ہے۔ مگر ادھر سیف انوائرمنٹ ہے جہاں ریسٹرکشنز ہیں، رولز ہیں، اور کوئی پیدل یا کوئی انوسنٹ سویلینس تو نہیں چل رہے سر، تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ادھر۔ ٹریک بہت اچھا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہیں کہیں تھوڑا کرٹیکل ہے، لیکن اٹس فن، وہ بہت اچھا مزیدار ٹریک بنا ہوا ہے۔ ہب ریلی آٹو کراس کے مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی شجاعت شیروانی کی اس کاوش کو سراہا اور کہا کہ کراچی کے لوگ بڑی تعداد میں آئے، فیملیز نے یہاں آ کر ریسنگ دیکھی۔ یہ ریلی پورا سال اور ہر سال ہونی چاہیے، اور پھر گورنر انیشیٹو کے تحت یہ بات ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر اس اسپورٹس کو اور بھی ایکٹیویٹیز کو اس ڈی ایچ اے سٹی میں انشاءاللہ آرگنائز کریں گے۔ سہیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ آفر کراچی کے لوگوں کے لیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے کی ہے۔ ہب ریلی آٹو کراس میں پری پیڈ اے کیٹیگری تیمور من والا نے جیت لی، فراز شیروانی نے پوزیشن لی۔ ایونٹ میں خواتین کسی سے بھی پیچھے نہیں رہیں، اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ فاطمہ is on track right now۔ لاہور کی فاطمہ بنت اظہر نے پہلی، دینا پٹیل نے دوسری اور بسمہ نے تیسری پوزیشن لی۔ تمام کیٹیگریز کے فاتح کو 25,000 روپے انعام دیا گیا۔ سید حمزہ حامد۔ نادر مکسی کو ستارہ امتیاز جیتنے پر ویل آف آنر کا ایوارڈ دیا گیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیوریج پمپنگ اسٹیشن 2 کرنگی کی اربوں روپے کی زمین نجی کمپنی کے حوالے کر دی گئی۔ یونائٹڈ ورکرز یونین کے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن پر الزامات۔ یونین نے کہا کہ کے ڈی اے بغیر نوٹس کے ملازمین کے مکانات بھی توڑ دیے گئے۔ احسن عباسی کی رپورٹ۔ واٹر بورڈ کی زمینوں پہ قبضہ واٹر کارپوریشن کی غفلت، ادارے کو اربوں روپے کا نقصان۔ یونائٹڈ ورکرز یونین کی انتظامیہ واقعے پر سراپا احتجاج۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانیں، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانیں۔ یونائٹڈ ورکرز یونین کراچی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ سے سیوریج پمپنگ اسٹیشن نمبر 2 کورنگی انڈسٹریل ایریا کی اربوں روپے کی اراضی کا نقصان محکمے کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو ہم ایم ڈی واٹر بورڈ کے بھی اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ایک ہمارا ساتھی یہاں کا وہ ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے، ہائی کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے یہ بدماشی سے جو ہے نا اس کو توڑا گیا۔ معاملے پر واٹر کارپوریشن انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ کے ڈی اے کی بغیر نوٹس کارروائی پر ملازمین میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں، اقلیتی کے لوگ اپیل کرتے ہیں، جناب چیئرمین صاحب آپ نوٹس لے لو، روٹی تو ہمیں نہیں مل رہا ہے، کپڑا تو نہیں، کم از کم ہمارے مکانیں توڑنے سے بچائے جائیں، آپ نوٹس لے لیں، آپ جناب چیئرمین صاحب نوٹس لے لیں۔ کے ڈی اے کے عملے نے فرضی پلاٹ نمبر 9 بنانے کے لیے پلاٹ نمبر 7 اور 8 پر کارروائی کر دی۔ واٹر کارپوریشن کے ملازمین کے 16 سے 11 مکانات توڑ دیے گئے اور ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آ رہا۔ 4 دن سے ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے گھر میں گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو اس ٹائم کیوں نہیں کوئی بولا، اب کیوں ان کو تکلیف ہو گئی ہے؟ یہ بہت ناانصافی ہے، انصاف کرے ہمارا۔ یونائٹڈ ورکرز یونین کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 1960 سے قائم سیوریج پمپنگ اسٹیشن 1983 میں واٹر بورڈ کے حوالے کیا گیا تھا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔
कारसाज हादसे में जाँ बहक होने वाली बाप बेटी के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज, आमना के अहल खाना और दीगर शुरका का इंसाफ का मुतालबा। मुजाहरा ह्यूमन राइट्स काउंसिल और सोच औरत के इश्तराक से किया गया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कई रोज बाद भी दर्दनाक हादसे की बाज़गश्त कम न हुई। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान भी इंसाफ के मुतालबे के लिए सरापा एहतजाज बन गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर सोच औरत के इश्तराक से एहतजाजी मुजाहरे में आमना के अहले खाना भी शरीक रहे। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका का कहना था कि आमना और उसके वालिद को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के लिए हम सबको मिलकर प्रेशर डालना है जिससे एक मिसाल कायम की जा सके। यहाँ पर आज एहतजाज करने का मकसद यही है कि हम ये एक तो शो करना चाहते हैं कि हम आमना आरिफ की फैमिली के साथ हैं और हम उसके लिए इंसाफ के हुसूल के लिए उनके साथ हैं। देखिए, इंसाफ तो सूरत में होगा जब लोग प्रेशर बनाएंगे सोसाइटी के ऊपर। एक सोसाइटी होने के नाते हमारा काम ये है कि हम जो है वो मिलकर एक दूसरे की आवाज़ बने ताकि कल किसी के साथ भी वो मसला हो तो लोगों को डर हो। एहतजाज में शरीक आमना के चचा ने इंसाफ की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। भाई को कब्र में उतारते हुए अश्कबार आंखों से अल्लाह से इंसाफ तलब किया था। जी, मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ कि इंसाफ मुझे मिलेगा और हमें जो है ना सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है वो नतीजे के मालिक है और बंदा जो है वो सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो इस वक्त जो है मैं जो हूँ सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह की ज़ात से पुरुम्मीद हूँ। मैंने खूब रो के अल्लाह ताला से अपने भाई को जब कब्र में उतारते हुए बेसाख्तगी से जो मेरे कलमात निकले थे उसमें यही था कि जो है मुझे अल्लाह आप इंसाफ दीजिए। मुजाहिरीन ने मुल्जिमा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा किया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। नॉर्थ कराची में फलाही इदारे के तहत चलने वाले स्कूल में सिंध स्कूल इम्प्रूवमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आयमा खान की रिपोर्ट। नॉर्थ कराची में लुमेंड्री लर्निंग सर्कल फाउंडेशन में सिंध स्कूल इम्प्रूवमेंट कॉन्फ्रेंस हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NGO की खदमात को सराहा और जावेद मियां दाद ने दोहरे तालीमी मयार को ख़त्म करने पर जोर दिया। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन LLCF इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून, साबिक क्रिकेटर जावेद मियां दाद और MKM की मकामी क़यादत भी शरीक हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ये स्कूल NGO ने बनाया, ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए था क्योंकि ये शहर टैक्स देने का मरकज़ है। बहरहाल मैं इतना सच नहीं बोलूँगा कि वो ये एक अच्छा काम होना चाहिए। नजीब भाई बता रहे थे कि ये भी डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है, ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए था। साबिक क्रिकेटर जावेद मियां दाद बोले, दोहरे तालीमी मयार को अब ख़त्म होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की इंतज़ामिया को तालीमी इदारों में बेहतरी लानी चाहिए। एजुकेशन के लिए तो सारे स्कूल हमेशा ये सारी दुनिया में है, क्योंकि वहाँ बाज़ जगह पे ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सारा है ना इनिशिएटिव लेती है, हर चीज़ उन्होंने ना लाइन अप की होती है। यहाँ भी की है मगर यहाँ वो उस तरीके से नहीं है। यहाँ प्राइवेट भी है, प्राइवेट में पढ़ाई कुछ और है, गवर्नमेंट स्कूलों में ये है, तो सबसे हम डिसअपॉइंटेड हैं। तकरीब में नन्हे तुलबा की जानिब से टैबलो भी पेश किए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इल्म व फ़नून के ख़जानों से मामूर फेयर हॉल की कदीम लाइब्रेरी का आज भी कुतुब्बीन बड़ी तादाद में रुख करते हैं, लेकिन यहाँ इल्म की प्यास के लिए आने वाले खस्ता हाल और बोसीदा किताबों को देखकर अफसरदा हो जाते हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। 150 साल पुरानी इमारत में कायम लाइब्रेरी आज भी तलबा के लिए मददगार साबित हो रही है। इस लाइब्रेरी में कौन से मज़ामीन की कितनी किताबें मौजूद हैं, आइए जानते हैं। कुतुब्बीनी के शौकीनों के लिए फेयर हॉल की लाइब्रेरी किसी खजाने से मजहबी, तारीखी, जोग्राफियाई, साइंसी, अदबी और दीगर मौज़ूआत की किताबें बकसरत मौजूद हैं। 50,000 से ज़ायद किताबों पर मुश्तमिल इस लाइब्रेरी में ऐसी कुतुब भी हैं जो मार्केट में दस्तयाब नहीं। पुरानी किताबों के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत सारी, फिक्शन की बात करें, अगर आप स्टोरी राइटिंग की बात करें, बाकी CSS के हवाले से पहले बुक्स हुआ करती थी, यानी अभी हमारे पास बहुत कलेक्शन अवेलेबल है CSS की किताबों की, जो कि बच्चे अवेल कर सकते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो है रेयर सेक्शन है हमारा, उसमें फ़ारसी और अरबी में हमारे पास बुक्स हैं, इंग्लिश में भी हैं और कलमी नुस्खे भी हैं हमारे पास, और जो है उर्दू की इस तरह शायरी है हमारे पास, अफसाने और हिस्ट्री है,
मुख्तलिफ मुल्कों की हिस्ट्री अमेरिका की इस तरह होगी और मुख्तलिफ तारीख की किताबें भी हैं हमारे पास। लाइब्रेरी की खस्ता हाल और बोसीदा किताबें इंतज़ामिया की कारकर्दगी बयान कर रही हैं। दीवारों पर लगी दीमक अदम तवज्जही पर पैन करती नजर आती है। इल्म की प्यास बुझाने के लिए आने वाले लाइब्रेरी की हालत बेहतर होने के मुंतज़िर हैं। वो तकरीबन थोड़े से टिल्ट नहीं है उस तरफ की, जो नई मार्केट में एक स्टफ़ आता है उसको भी हम ऐड करते जाएं और अपनी आउट ऑफ डेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐड करते जाएं और उनका एक अलग स्टफ़ बनाएं और जो न्यू बुक्स हैं उनका एक अलग स्टफ़ हम इंस्टॉल करें। तो इस तरीके से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसकी काफ़ी स्कैसिटी और इनेबिलिटी है। फेमिगेशन नहीं हुई थी तो ये इसके अंदर एक किताब एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो उस वजह से वो जो है ना बहुत मतलब नुकसान करता है जब तक, तो वो हर 6 महीने का फेमिगेशन होनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम से फेमिगेशन नहीं हुई थी, तो उस वजह तकरीबन काफ़ी टाइम हो, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल पहले हुई थी, तो हर 6 महीने बाद तकरीबन फेमिगेशन होनी चाहिए। लाइब्रेरी में मौजूद जो खूबसूरत लकड़ी की अलमारियों में मौजूद होना चाहिए, धूल मिट्टी में अटा किसी गैर ज़रूरी सामान की तरह रखा नज़र आता है। कुतुब खाने की क़दामत और उसकी इमारत की शिकस्ता हाली इंतज़ामिया की फौरी तवज्जो की तालिब है। इस कदीमी लाइब्रेरी में पुरानी और आग की खुशबू तो आज भी महसूस की जाती है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया इसकी हिफाजत पर भी तवज्जो दे। कैमरामैन शरियार अली के साथ नम्र रियासत, सिटी 21। MQM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध हुकूमत आवाम से टैक्स लेती है, लेकिन जिना अस्पताल को चंदे पर चलाया जा रहा है। सिंध हुकूमत वज़रा और तर्जुमानों का जवाबी वार। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल पर 30 अरब रुपए खर्च किए हैं। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। कराची के अस्पतालों की खराब सूरत हाल, सिंध हुकूमत और MQM के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। नॉर्थ कराची में फलाही इदारे के तहत चलने वाले स्कूल में सिंध स्कूल इम्प्रूवमेंट कॉन्फ्रेंस MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों अस्पतालों को डोनर्स के चंदे से चला रही है। ये शहर इस मुल्क के जो टैक्स जमा होता है उसका अभी भी 70% दे रहा है, और जो सिंध में जमा होता है उसका 97% दे रहा है। तो आप लोग अगर आपकी डोनेशन से ये दुनिया में शहर कराची ये दुनिया का कैपिटल है चैरिटी का, ये जिना अस्पताल किसी सरकार के खर्चे से नहीं चल रहा है, ये डोनर्स की मदद से चल रहा है। सूबाई वज़रा के जवाबी वार। नासिर हुसैन शाह बोले कि कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। कराची के ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया उसको भी याद रखा जाए। सिंध हुकूमत जिना, NICVD और NICH पर 30 अरब रुपए खर्च करती है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स महज हसद की बुनियाद पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत 3 बड़े अस्पतालों पर 2011 से अब तक 157 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च कर चुकी है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि खालिद मकबूल 10 बार वफाकी वज़ीर बने, वो बताएं कराची के लिए उन्होंने क्या किया। खालिद मकबूल और उनका टोला कराची में नफरत, खूनरेज़ी और दहशत की अलामत है। कराची वाले, पाकिस्तान वाले आपके मुस्तकबिल और हाल दोनों से वाकिफ़ हैं। आप 10 दफ़ा वज़ीर बने हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपका इस शहर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई एक प्रोजेक्ट जो आपने अपनी वजारत के तहत दिया हो। आज भी आप 2 वजारतों पे बुर्जुमान हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या कंट्रीब्यूशन है आपका कराची के लिए? उन वजारतों के तहत कौन से प्रोजेक्ट, कौन से प्रोग्राम आप कराची के लिए लाएं? MQM और पीपल्स पार्टी यूं तो वफाक में इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन सिंध में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की गोलाबारी करती रहती हैं। आजिज़ जमाली, कराची। कराची वाले हो जाएं होशियार। महकमा मौसमियात ने तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी।
माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक नया सिस्टम 26 अगस्त को पूरे सिंध को लपेट में ले लेगा। शहर कायद में 27 से 29 अगस्त के दौरान अच्छी बारिशों का इम्कान है। आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान कराची में दर्जे हरारत में थोड़ा सा इजाफा होगा। तकरीबन दर्जे हरारत जो मैक्सिमम है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम ज़्यादा नमी होने की वजह से फील लाइक जो है वो ज़्यादा महसूस किया जाएगा। ताहम समुद्री हवाएं जो है वो अच्छी इंटेंसिटी के साथ बरकरार रहेंगी। ताहम बारिश या बूंदाबांदी का फिल वक्त अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान कोई इम्कान नहीं है। ताहम 26 तारीख से एक मानसून का बारिश बरसाने वाला सिलसिला जो है वो मशरक़ी सिंध से दाखिल होने का इम्कान है, जिसके तहत इस बात की तवक्को है कि 27 से 29 अगस्त के दौरान कराची में अच्छी बारिश का इम्कान है। मानसून के ताकतवर सिस्टम का सामना करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की तैयारियां। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। PDMA की बारिशों से मुतल्लिक पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज की गई। रेन इमरजेंसी में बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहेगा। शहर के अहम चौकिंग पॉइंट्स और मरकज़ी शाहराहों पर डी वाटरिंग पंप नस्ब किए जाएंगे। शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सिटी वार्डन्स की मदद हासिल की जाएगी। कराची में सड़कों की खस्ता हाली, पानी की किल्लत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। जमात इस्लामी KMC बिल्डिंग के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरे में अमीर जमात इस्लामी कराची समेत टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन ने शिरकत की। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में सड़कों की खस्ता हाली, पानी की किल्लत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन KMC बिल्डिंग के बाहर सरापा एहतजाज। मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी, UC सतह पर इख्तियारात बहाल करने का मुतालबा। KMC के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिर में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर तनकीद करते हुए कहा, शहर की अहम शाहराहें खस्ता हाल हैं। शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम है। K4 मंसूबा अगले 4 साल में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप इन सारी चीजों में नाकाम हो गए हैं। आप न कराची को पानी दे सके हैं, न सीवरेज का निजाम दे सके हैं। जभी तो थोड़ी सी बारिश होती है, सीवरेज का निजाम बैठ जाता है, जगह जगह सड़कें बैठ जाती हैं। मुजाहिरे से KMC ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट और टाउन चेयरमैन ने निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए कहा, हल्फ लिए हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक फंड्स जारी नहीं किए गए। इन्होंने न सिर्फ तमाम इख्तियारात तलब कर लिए हैं, बल्कि तमाम के तमाम फंड उसको भी खोट किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जमात कराची की इस बात का फैसला करेगी कि अगला एहतजाज इससे बड़ा एहतजाज होगा। मुनम जफर ने शहर में बारिश की पेशगोई पर टाउन चेयरमैन को सड़कों की निगरानी की हिदायत करते हुए कहा कि कराची में मामूली बारिश से भी ज्यादा पानी आ जाता है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का क़याम सिंध हुकूमत का सेहतमंद और साफ पाकिस्तान का मिशन। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जदीद तरीन गाड़ियों और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए घरों से कचरा इकट्ठा करने और शहर की सड़कों और शाहराहों की सफाई को यकीनी बनाता है। SSWMB में 2300 से ज़ायद गाड़ियाँ और 8500 से ज़ायद मजदूर शामिल हैं, जो सूबे के बड़े शहरों जैसे कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना से रोज़ाना 10,000 टन से ज़्यादा कचरा इकट्ठा करके ठिकाने लगाते हैं। इसके अलावा जदीद मैकेनिकल स्वीपर गाड़ियाँ 1600 किलोमीटर से ज़्यादा शहरी सड़कों और शाहराहों पर सफाई की खिदमात अंजाम देती हैं। MQM की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल में शजरकारी मुहिम की तकरीब। डॉक्टर फारूक सत्तार की तकरीब के दौरान GA मुत्तहिदा के बजाय मुतनाज़े नारे लगते रहे, जिस पर फारूक सत्तार पहले झींपे, फिर खिसियाकर मुस्कुराए और आखिर में सहाफ़ियों से दरख्वास्त की कि घर की बात घर ही में रहे, बाहर न जाए। नारे मुत्तहिदा, नारे जितनी मेहनत कर लो उस पे पानी फेरना जो है हमारे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, ये मीडिया वाले भी भाई अपने ही हैं, आपस में ही ये बात घर के अंदर हुई है, घर ही में रहनी चाहिए।
घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चले, इसीलिए कहते हैं नारों की प्रैक्टिस रोजाना करनी चाहिए। अगर 2-2 साल में नारे लगाएंगे तो फिर क्या होगा। की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल में शजरकारी मुहिम की तकरीब। डॉक्टर फारूक सत्तार की तकरीर के दौरान जे मुत्तहिदा के बजाय मुतनाज़े नारे लगते लगते रह गए, जिस पर फारूक सत्तार पहले झींपे, फिर खिसियाकर मुस्कुराए और आखिर में सहाफ़ियों से दरख्वास्त की कि घर की बात घर ही में रहे, बाहर ना जाए। नारे मुत्तहिदा, नारे जितनी मेहनत कर लो उस पे पानी फेरना जो है हमारे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, ये मीडिया वाले भी भाई अपने ही हैं, आपस में ही। ये बात घर के अंदर हुई और घर ही में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चले, इसीलिए कहते हैं नारों की प्रैक्टिस रोजाना करनी चाहिए। अगर 2-2 साल में नारे लगाएंगे तो फिर क्या होगा।